Class 8th. Now we have moved to the last part of your chapter, industries, that is the information technology. Two industry which we studied earlier was the cotton textile and the iron and steel industries. Now the third and the most modern, effective and the most powerful industry, that is the part of the service sector, is the information technology. So the last part is the information technology. Today in the series of the videos we will try to understand what is the information technology, what is the information technology industry and how it works. Information technology means storage of the informations, processing and the distributions of the information. What I am doing, look at this iPad, this PDF or this ebook is the storage of the informations I have stored in my device. And what I am doing, in order to explain this or making a product out of it, I am doing the processing through the help of this device which I am shooting your video. So we are processing and we are making a product and we will distribute. How? With the help of a application is a WhatsApp. With the help of the internet we are able to send out the message at your home, and sitting at your home very distance from the locations of mine, you are able to see the masses and able to study in a proper manner. What is this? This is the IT industry and we have to discuss about this one. आप इतनी दूर घर में बैठे हैं और यहाँ से मैं एक स्टोरेज जो चीज़ है एक प्रोसेसिंग कर रहा हूँ उससे और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन. यही क्या है? इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है. When you go to the banks, the way our modern banking system operate, it is entirely on the information technology. The way when you book the tickets of the railway, और अभी हम दिखाएंगे वो कैसे काम करता है, और when you book the ticket of a film halls or anything which you ask to purchase from to the Amazons or Google or anything or the Flipkart, that is all about to the help of the information technology. So in the last 3 decades or the 4 decades, the production, distributions, communications, everything has been revolutionized by this technology of the information technology. So before we understand what is this information technology, look at this story here. हम इस स्टोरी को देखते हैं इससे पहले कि हम समझें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है. कि इमेजिन हाउ, आप कल्पना कीजिए, हाउ मच कुड बी अकम्प्लिश इफ कंपनीज कुड ऑपरेट इन द 24 आवर वर्क डे. कंपनी 12 घंटे काम करती है, अगर कोई कंपनी 24 घंटे काम करे तो वो कितना कुछ चीज़ें अचीव कर पाएगी, बहुत कुछ. सम सॉफ्टवेयर कंपनीज, अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? व्हाट्सएप आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है. बैंक में आप जाते हैं, एटीएम से आप पैसे निकालते हैं, आपका जो कार्ड होता है प्लास्टिक का, उसको आप जब इंसर्ट करते हैं उसके बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, आपके अकाउंट से पैसा आ जाता है. ये एक सॉफ्टवेयर है. या इमेजिन कीजिए आपके स्कूल्स में आप आए और आपका जो आपको एक कार्ड दिया गया है जो आपके एक आइडेंटिटी कार्ड है, और आप क्या करते हैं, अपने गेट पे एक मशीन है उसको स्कैन करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर्ड स्कूल के सॉफ्टवेयर में पहुंचती है, आपकी अटेंडेंस रजिस्टर्ड होती है और आपके घर मैसेज पहुंच जाता है कि आपका बच्चा स्कूल पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है. ये क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर हैं. ये कहता है सम सॉफ्टवेयर कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड बैंगलोर इंडिया में हैज जॉइन हैंड टू अचीव दिस. वो मिलके काम कर रही हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच दिस फॉर्म. दो मिलके काम कर रहे हैं. कैसे काम कर रहे हैं? शिफ्ट ऑफ द वर्क होती है अक्रॉस द ओशियन, समुद्र के आर पार. इंडिया और अमेरिका के बीच में कितने समुद्र आते हैं? मेडिटेरियन आएगा, इंडियन ओशियन आएगा, अटलांटिक आएगा, अच्छा अटलांटिक नहीं आएगा, पैसिफिक आएगा, अटलांटिक आएगा. तो देखो कैसे काम करते हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच दिस फॉर्म ऑफ द स्टेट वर्क अक्रॉस द ओशियन. फॉर एग्जाम्पल 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, 2 सॉफ्टवेयर पेशेवर जो सॉफ्टवेयर जानते हैं. डैनी है सिलिकॉन वैली. सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में एक चिप होती है सिलिकॉन, अभी बात करेंगे उसके बारे में. तो ये आईटी इंडस्ट्री जहाँ कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड में, उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं. और एंड स्मिता और बेंगलुरु में जो स्मिता आर वर्किंग है जॉइंट प्रोजेक्ट, वो दोनों क्या काम कर रहे हैं? जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. स्मिता जो है इन बेंगलोर की, जब वो सोती है रात में ना, क्योंकि जब वो रात में सोती है तो अमेरिका में सुबह हो रहती है और दिल्ली कैलिफोर्निया में काम कर रहे होते हैं. एट द एंड ऑफ हिज वर्क, और काम करने के बाद क्या होते हैं, ही सेंड ए मैसेज टू स्मिता. जो डैनी है वो स्मिता को मैसेज भेजते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया है. उसके बाद जब वो बेंगलुरु अपने ऑफिस में आती है कुछ देर बाद, फिर वो अपना काम करने लगती है. तो इस तरह से दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. इस तरह से बहुत सारा वर्क्स अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, ठीक है. तो हम देखने की कोशिश करते हैं क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ और ये कैसे ऑपरेट करती है. तो इसमें एक प्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो पहले तो कंप्यूटर, इंटरनेट. देखिए इंटरनेट ऐसे काम करता है, ये टैब है, ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है.
इंटरनेट का मतलब है कि दुनिया भर में एक जाल है जहां एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से फाइबर ऑप्टिकल्स की मदद से आपस में कनेक्ट है, जिससे इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें और इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं सिंपल शब्दों में। तो हम देखते हैं क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ द इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में काम कर रहा है, इसके अलग अलग लोग हैं, ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, तो इसके लिए जो कंप्यूटर की इंजीनियरिंग होती है उसको हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर आता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब जिसके थ्रू आप इंटरनेट में बात कर रहे हैं, टावर के थ्रू आपके घर में मैसेज आ रहा है, सारी चीज़ें, और मेमोरीज़ है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कंप्यूटर के बारे में तो आप जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर्स को या इस मशीन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह की उनमें स्टोरेज होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं, वो कैसे शेयर करते हैं, तो एक अलग सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे इसने कहा कि अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था जब हम कभी कंप्यूटर पढ़ रहे थे, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो एंड्रॉयड लिखा आता है। और ऐसे ही हमारे लैपटॉप्स में माइक्रोसॉफ्ट के या इसमें मैकिन्टॉश मैक के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका व्हाट्सअप को आप कह सकते हो, इंटरनेट ब्राउज़र है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दिखा रखा है, ये तो होते हैं सॉफ्टवेयर का पार्ट। ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। हार्डवेयर ऐसा पार्ट है जो दिखता है हमें बाहर से, CPU है, डिस्क है, माउस है, ये आपका हार्डवेयर पार्ट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आती है। अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ये आपने देखा होगा, ये वर्ड फाइल्स के लोगोज बने हुए हैं, पावर प्रेजेंटेशंस है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक्स है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं अगर आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। उसमें आके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हुए वर्क करते हैं। ठीक है, इसको और देखने की कोशिश करते हैं हम ऐसे। इसमें आप तीन ही चीज़ करते हैं, स्टोर करते हैं डेटास को, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं डाटा को बिजनेस के लिए या इंटरप्राइजेस के लिए। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपका काम करती है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि डाटाबेस है, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेट है, सपोर्ट है, नेटवर्क है, डेवलपमेंट है, कंप्यूटर है। तो इसी तरह से आप ये काम करते हैं, इसके बारे में दिखा रखा है। तो हम देखते हैं कि 1840-1940 के बीच में कुछ कुछ काम हुआ इनमें, लेकिन ये वो दौर था जब शुरुआत के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। मेन काम क्या था कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एक चिप की मदद से पहुंचाना, जो सिलिकॉन का बना हुआ एक चिप होता है, जिसने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज़ किया पूरी की पूरी IT इंडस्ट्रीज़ को। अब एक चीज़ आती है सिलिकॉन वैली। हम क्यों बोलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलोर को बोलते हैं क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को या फिर आपका सांता क्लारा वैली जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ है। तो उस यूनिवर्सिटीज़ के अगल में सारी वो कंपनीज़ चलती हैं जो डाटा स्टोर करती हैं, डाटा ऑपरेट करती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं, और जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बिजनेस को सपोर्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो कौन थे? सिलिकॉन वैली जो है आपका पालो आल्टो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में थे, तो उन्होंने वहाँ पे इनको फादर ऑफ द सिलिकॉन वैलीज़ कहते हैं। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहीं पे उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में आप क्या कीजिए, एक स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया, बाद में इसको सिलिकॉन वैली कहा गया। कहा जाता है कि 70% इंडियंस हैं, फेसबुक्स हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर्स हो, यूट्यूब्स, ये सारे के सारे इनके सारे के ऑफिस यहीं हैं इस सिलिकॉन वैलीज़ में। और दुनिया भर में ये एंटरप्रेन्योरशिप्स का या दुनिया भर में ये अपने तरह के इनोवेशंस का एक क्लासिकल एग्जांपल्स है। चाहे HP हो, IBM हो, एप्पल हो, इंटेल हो, वो सारी की सारी कंपनीज यहीं ऑपरेट होती हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम्स में सबसे बड़ी बात है कि IT इंडस्ट्रीज़ में आपको इंजीनियर या टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती है। ये यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। हाई स्किल्स जो लोग होते हैं, एक इस तरह की एजुकेशन सिस्टम होती है, प्रॉब्लम को समझते हैं, बिजनेस प्रोसेस को समझते हैं, तो वो सारी की इंडस्ट्री यहाँ पे सिलिकॉन वैलीज़ में आपके सेटअप है। तो सिलिकॉन वैली क्यों चूज किया गया? कि वही यूनिवर्सिटीज़ थी, उस तरह का एक नेटवर्क था, एंटरप्रेन्योर्स थे और इस तरह का नॉलेज था वहाँ पे। और भारत में ये चीज़ें फिर आपकी बेंगलोर पे आती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिलिकॉन वैली के बारे में समझा, IT इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझा। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रीज़ वर्क करती है।